آئیے ہم زوردار تعلیم جائیں خداوند کے جلال کے لیے اور خداوند کے لیے، خداوند کے پاک روح کے لیے کہ جو یہاں پر موجود ہے. ہم زوردار تعلیموں کے ساتھ خدا کے پاک روح کو جو یہاں پر موجود ہے ہم ویلکم Hallelujah. کریں. Thank you, ہاللویا. Jesus. خداوند کی تعریف ہو. Hallelujah. خداوند ہی کی حمد و ستائش ہو. وہی قدرت، حشمت اور بزرگی کے لائق خدا ہے. ہم سر عزت و سر جلال خدا باپ، خدا بیٹی اور خدا روح القدس کو دیتے ہیں. ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. تو آئیے اس سے پہلے کہ ہم آج کا کلام شروع کریں، میں چھوٹا سا ایک کورس گاؤں گی، پھر اس کے بعد ہم کلام کی طرف بڑھتے ہیں. Hallelujah. تو آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سسٹر، بہت اچھی آواز آ رہی ہے آپ کی. ہاللویا. چلیں ٹھیک ہے. آئیے ہم کورس گاتے ہیں. روح پاک خداوندا تو آ، جان جسم اور روح میں تو بس جا، روح کے شعلے لپک لپک جب آتے ہیں، بندھن سارے ٹوٹ کے گرتے جاتے ہیں. روح کے شعلے لپک لپک جب آتے ہیں، بندھن سارے ٹوٹ کے گرتے جاتے ہیں. Hallelujah. آمین. پاک روح، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. تو جو یہاں پر موجود ہے ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، کیونکہ تو قدرت، حشمت اور بزرگی سے بھرا خدا ہے. بے شک تو خدا یسوع مسیح کی صورت میں ہمارے ساتھ رہتا ہے، تو ہمارے اندر رہتا ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں. پاک روح آؤ، اپنے لوگوں سے کلام کر. اب میں اپنے آپ کو پاک روح تیرے ہاتھوں میں دیتی ہوں. اپنی سوچ خیال کو پاک روح میں تیرے تابع کرتی ہوں. میں نہ بولوں بلکہ تو مجھ سے، میرے اندر سے ہو کے کلام کر، بات کر، تاکہ آج کے کلام کے وسیلہ سے بہت سی زندگیاں بچیں، بہت سی زندگیاں پہچانیں، بہت سی زندگیاں جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور اپنی راہوں کو، اپنی جو ایمان کی سمت ہے اس کو درست کریں، تاکہ جتنی زیادہ روحیں بچ سکیں اتنا ہی خداوند اپنا کام کرے، اتنا ہی زیادہ خداوند کا کلام دوسروں تک پہنچے، اتنا زیادہ ہی لوگ جو ہیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور زندگی کو حاصل کریں. ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام میں آمین. آئیے ہم آج کے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارے جو سیمینار ہوئے تھے، جتنے بھی ہوئے تھے وہ سب انگلش میں ہوئے تھے. تو میں ایمان رکھتی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ آپ سب کو وہ جو جتنے بھی لیکچرز تھے وہ آپ کو سمجھ آئے ہیں. لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو ان لوگوں کے لیے بھی جو انگلش کو نہیں سمجھتے یا جو اس موقع پر موجود نہیں تھے، ہم ان کو اردو میں جو ہے میں کوشش کروں کہ ہم ان کو اردو میں جو ہے سٹارٹ کریں. یہ میں سلسلہ جو ہے سٹارٹ کروں گی. آج ہم لیکچر نمبر 1 سے شروع کریں گے اور ہر سیٹرڈے یا سنڈے کو جو ہے میں ان میں سے ایک لیکچر جو ہے ہم ترتیب سے جو ہے ان پر بات کریں گے.
तो आइए आज हम बात करते हैं, पहला जो लेक्चर है वो सबसे पहला बात यह है कि हमारा जो ईमान है खुदा यीशु मसीह पर, या जो हमारे ईमान की बुनियाद है वो क्या है। या मतलब खुदा यीशु मसीह जो है जब जमीन पर आए, और खुशखबरी की जब हम बात करते हैं, हम जैसे कि कहते हैं कि हम अंजील की मुनादी करते हैं, हम सब यही कहते हैं कि हम अंजील की मुनादी के लिए, हम अंजील की बशारत के लिए हैं। हाँ, हम उस खुशखबरी की मुनादी करते हैं जो खुदा यीशु मसीह ने हमें दी। तो आज हम इस पे बात करते हैं कि खुशखबरी क्या है, अंजील क्या है, या खुशी की वो खबर क्या है जिसकी हम मुनादी करते हैं, या जिसके लिए हम खादिम बनाए गए हैं, जिसके लिए हम खादिम ठहराए गए हैं। तो हम ये बात करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मैं चाहूंगी कि अगर आप सब अपना, मैं बारी बारी अपना अपना माइक ऑन करेंगे और आप बताएंगे कि आपके नजदीक जो है खुशखबरी की या खुशी की खबर की या अंजील की जो है आपकी नजर में, या आप उसकी तारीफ कैसे करेंगे। तो मैं चाहूंगी कि हम सिस्टर पूनम से स्टार्ट करें और इसके बाद फिर हम बारी बारी जो है तरतीब से जाएंगे, और आप अपनी जो आप समझते हैं और या जिस पर आपका ईमान है कि खुशखबरी क्या है और या उसकी तारीफ क्या है, तो आप उसको बयान करें। तो मैं चाहूंगी सिस्टर पूनम से हम स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुशखबरी ये है प्लीज कि अगर आप जैसे, अपने अपने कैमरे भी ऑन कर लें जब आप बोलें। हालेलुया, मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ, हालेलुया, कि जब हमारी खुशखबरी होती है तो खुशखबरी हमारी ये है कि सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो उठ के सबसे पहले खुदा का नाम लेते हैं, और खुदावंद हमें कहता है कि तुमने आज मेरे नाम की जो दुआ की है, मैंने तुम्हें सब कुछ, सुबह आज दिन निकला है तो मैंने तुम्हें जो कुछ दिया है तुम उसको कैसे बांटते हो, जहाँ रोज की रोटी कैसे खाते हैं। तो खुशखबरी का ये है कि हम सुबह उठते हैं, जब घर से बाहर जाते हैं तो लोगों को भी हम प्रचार करते हैं, रूहानी रोटी खिलाते हैं खुशखबरी सुना के कि खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे को सिर्फ इतना ही पता है कि मैं खुदावंद के नाम से मैं रोज बाहर जाऊं और खुदावंद की रोटी मैं लोगों को खिलाऊं। हालेलुया। और हालेलुया। इन लोगों ने, जो लोग खुदावंद का नाम नहीं जानते, उन उन लोगों के बीच जाके हम खुदावंद को बताएं। जैसे 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 मेरे साथ एक काम करने वाली है लड़की, मेरे साथ जो करती तो वो सिर्फ इंग्लिश जानती है, जो अपनी लैंग्वेज जानती है इटालियन है। तो मेरे को इतनी इटालियन नहीं आती, तो मेरे को इतनी परफेक्ट इटालियन इंग्लिश भी नहीं आती, क्योंकि इधर इधर जो है थोड़ा सा माहौल कुछ ऐसा है कि मेरे को इटालियन बोल बोल के जो इंग्लिश का वर्ड है वो भी भूलने शुरू हो गए हैं। हालेलुया। तो इटालियन परफेक्ट बोलती हूँ तो इसलिए मेरे को ज्यादा समझ नहीं आती। तो जब वो मेरे साथ में, आपको ये टेस्ट मनी है बहुत बड़ी, मेरी एक खुशखबरी की भी बात है। खुशखबरी ये है कि खुदावंद ने मेरे को उसके साथ जोड़ा है। वो खुदावंद को जानती है लेकिन खुदावंद में है नहीं है, वो खुदावंद में वो नहीं है। हालेलुया। तो हालेलुया। मैंने उसको एक दिन बोला, मैंने कहा तुम बाइबल पढ़ती हो? कहती सम टाइम्स। मैं कहा सम टाइम्स नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि हम खुदा के बच्चे हैं तो हमें पढ़नी चाहिए। तो अब उसको मैं रोज मैसेज भेजती हूँ। तो मैंने एक दिन आपको भी बोला कि आप इंग्लिश वाला जो मैसेज है, जिस दिन सेमिनार होया था, तो आप मेरे को जरूर सेंड करें। तो आप मेरे को सेंड करते हैं तो मैं उसको भी सेंड करती हूँ। तो मेरे को बड़ी खुशी मिलती है कि खुदावंद तेरे नाम का इसको पता था, लेकिन ये तेरे नाम में आगे बढ़ नहीं रही, ये तेरे नाम में आगे बढ़ना शुरू हो गई है, वो मेरे साथ बहुत क्लोज हो गई है। मैं खुदावंद को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। बेशक, हालेलुया, आमीन। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैं ब्रदर सानिया से कहूंगी कि ब्रदर, आपके नजदीक खुशखबरी जो है उसकी तारीफ क्या है, आप क्या समझते हैं, आपका ईमान क्या है। ब्रदर सानिया, आप हमें सुन रहे हैं? जी, ब्रदर हनूक हमारे साथ है, मैं चाहूंगी कि वो बात करें। जी सिस्टर, जी भाई, खुदावंद
आपके तो साथ भी हो, आप बताएं खुशखबरी, आपके नजदीक खुशखबरी क्या है? आप हम किस चीज की मुनादी करते हैं? असल में खुशखबरियां 2 तरह की हैं। एक जो है वो बाइबल से हट के है। वो खुशखबरी हम इस तरह भी कह सकते हैं कि खुशखबरी जैसे कि कुछ चीज हमें गिफ्ट करे, या कोई चीज हमें किसी ने दी है तो वो उस चीज के लिए हम उसकी शुक्रगुजारी करें। एक खुशी वो है जो उस चीज से, यानी कि हमें जो हमारी औकात नहीं, हमारी औकात से बाहर चीज है, वो हमें मिल जाए तो हम उस चीज को बहुत खुश होते हैं। और अकॉर्डिंग टू बाइबल सबसे बड़ी हमारे लिए खुशखबरी ये है कि खुदाम यीशु मसीह का बेटा जो इस दुनिया में आया और जिसने हमारे उस रिश्ते को जो आदम की वजह से टूट चुका था, उस रिश्ते को फिर से बहाल किया। सबसे बड़ी खुशखबरी बाइबल मुकद्दस में यही पाई जाती है। आमीन। आमीन, हालेलुया। और सबसे बड़ी खुशखबरी ये भी पाई जाती है कि खुदावंद ने हमें चुना। हालेलुया। हजारों में से हमारी कोई औकात नहीं थी, खुदावंद ने हमें चुना। हम दलदल की जिंदगी जी रहे थे, जीवन जी रहे थे ऐसे जैसे कि हम सिर्फ पैदा हुए हैं, खा लिया, पी लिया, सो लिया, काम कर लिया, बच्चों के लिए कमाई ले आए, खाना पीना यही था। लेकिन नहीं, जब हमने जाना कि खुदावंद यीशु जिंदा है तो हमारे काम भी जिंदा हो गए, हमारे बच्चे भी जिंदा हो गए, हमारे बिजनेस भी जिंदा हो गए, हमारी जिंदगियां भी जिंदा होगी। वो जीवन की हालेलुया, ज्योति हमारी जिंदगी है। हालेलुया। हालेलुया, खुदा उनकी तारीफ हो। जी भाई रशीद, आप जी। हमें सुन रहे हैं, आप क्या कहेंगे? खुशखबरी क्या है? मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आपकी भी सलामती सबसे हो। पहले तो हमारी लाइट नहीं है, इस वजह से मैंने कैमरा भी ऑन किया है क्योंकि हमारी लाइट नहीं है। तो इस वक्त बिल्कुल हम अंधेरे में हैं, लेकिन खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदा का कलाम जो रोशनी है, जो सबसे बड़ी खुशखबरी है, चाहे अंधेरा हो, चाहे काल हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, सो दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी खुशखबरी है वो खुदा का जिंदा और मुकद्दस पाकलाम है, जिसकी वसीला से जो है वो लोग जिंदा किए जाते हैं। इससे बड़ी दुनिया में कोई भी खुशखबरी नहीं है। सो मेरे नजदीक सबसे बड़ी खुशखबरी जो है वो खुदा का कलाम है। और बाइबल मुकद्दस मुताबिक यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में कसम लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुद खुदा था। सो दुनिया के लिए और हमारे लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है कि खुदा ने अपने बेटे यीशु को और अपने पाक कलाम को, जो जिंदा कलाम है, इस जमीन पर भेजा ताकि जो कोई भी इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। सो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें जिंदगी देने के लिए और हमेशा की जिंदगी देने के लिए, या जो लोग दुख में थे, कर्ब में थे और मौत के शिकंजे में लोग जो जकड़े हुए थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो है वो हमें खुशखबरी दी। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर ये शादियाना बजाया और उसने ये खुशखबरी का पैगाम तमाम कौमों के लिए, तमाम उम्मतों के लिए और तमाम बनी नौ इंसान के लिए खुदा ने जो है वो अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से इस बड़ी खुशखबरी को जो है वो दुनिया पर जाहिर किया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आमीन, आमीन। हमारे साथ ब्रदर रवि हैं, मैं चाहूंगी कि वो बताएं खुशखबरी क्या है। जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈਨਸੀ की जय मसीह की। ਸੋ ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਗਤ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਮੀਨ। आमीन। हमारे साथ किरण गेस्ट हैं, मैं चाहूंगी कि अगर वो मुझे सुन रही हैं तो वो बताएं कि खुशखबरी क्या है उनके नजदीक। मसीह के जिंदा और पाक नाम में आप सबको सलाम। आपको भी खुशखबरी सलाम। हमारे लिए यही है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है
पूरी दुनिया के लिए ये सबसे बड़ा खुशी का पैगाम है। यस, हालेलुया, आमीन। जी, और भाई फयाज, आपके करीब जो है वो खुशखबरी क्या है? मसीह यीशु में आप सबको सलाम। हम देखते हैं कि अंजील के मैनी भी खुशखबरी हैं और बहुत सारी जगहों पर इंग्लिश बाइबल में इसको गुड न्यूज़ कहा गया और बहुत सारे जीसस क्राइस्ट ने जो आकर जमीन पर आकर इंसान का रूप लेकर जो काम किए उनको भी गुड न्यूज़ कहा गया। तो वो काम और किसने किए थे? वो काम किसने किए थे? किसके लिए किए थे? हमारे लिए किए थे। खुशखबरी हमने अपने ऊपर ली है। आप सुने प्लीज, पहले मुकम्मल सुन लें फिर बोलते हैं। अच्छा Thank मेरी you. बात सुनिए। अच्छा मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगी कि प्लीज जब कोई बोल रहा था तो दूसरा बीच में इंटरप्ट ना करे काइंडली। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी। खुदा गॉड ब्लेस यू। आप सब जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छा है। मैं किसी को वो नहीं कर रहा, ना किसी की बात काट रहा हूँ। जिन्होंने बताया वो सबने अपने अपनी सोच के मुताबिक बहुत अच्छा बताया है, लेकिन सिर्फ मैं अपने व्यू भी दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बाइबल ही है कि जो काम खुदा यीशु मसीह ने किए वो आप जानते हैं कि बड़ी देर से जो उम्मत थी, कौम थी, नेशन थी, वो मसाया का इंतजार कर रही थी। और जब वो आते हैं तो वो समझते हैं हमारे मसाइल का हल इनके पास है। और हम देखते हैं बाइबल में लिखा है वो बहुत सारी दफा जीसस क्राइस्ट का बिलीव नहीं करते थे। वो कहते हैं जब तक मैं आपको कोई मौजज़ा ना दिखाऊं तब तक आप मेरा यकीन नहीं करोगे। तो हम देखते हैं कि ये खुशखबरी जब खुदा यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, उन्हें ब्लेस करते हैं, बदरूहों को निकालते हैं, तो बहुत सारे मौजज़ा देखकर लोग उन पर ईमान लेके आते हैं। और जो हमारे भाइयों ने, हमारे खादमों ने, पास्टर्स ने कहा है वो भी बिल्कुल ठीक है, वो भी इसका हिस्सा है। मैं भी थोड़ा सा बता रहा हूँ, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। आप सब ठीक कह रहे हैं कि यीशु का पैदा होना, यीशु का सलीब पर चढ़ाया जाना और मुर्दों में से जी उठना, सब कुछ ही हमारे लिए खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। जी, मासल भाई इलियास से मैं चाहूंगी कि वो भी बयान करें कि खुशखबरी उनके नजदीक खुशखबरी क्या है, या वो जिस बात की मुनादी कर रहे हैं वो किस बात की मुनादी कर रहे हैं। खुदावंद यीशु में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। जी, मेरे नजदीक और बल्कि अकॉर्डिंग टू बाइबल अगर देखा जाए तो खुशखबरी का पैगाम जो है, जो अरशाद आजम है हमारे लिए, वो यही है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए और खुदा ने अपना इकलौता बेटा इस दुनिया को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और अपने कौल के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये हमारे लिए खुशखबरी है, ये हमारे लिए एवेंजलिज्म है, ये हमारे लिए एक अंजील को सुनाने का एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका है। बड़े बड़े मैसेज नहीं हम अंजील की मुनादी कर सकते, बल्कि हमारे लिए सिंपल यही है प्रीचिंग। हमारे लिए जो हमारी बाइबल की मोटो आयत है, यही खुशखबरी है कि यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये खुशखबरी हमने लोगों को देनी है कि यीशु मसीह जो मर गया था हमारे लिए जिंदा, वो अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहेगा। और वो खुशखबरी हमें चाहिए कि हम गैर कौमों में, उम्मतों, कबीलों में ये खुशखबरी दें कि यीशु हमारा मर गया था, वो जिंदा और अब्दुल्लाबाद तक जिंदा रहेगा। हालेलुया, आमीन। जी, भाई रशीद के साथ पास्टर नजीर आलम है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो भी बयान करें कि खुशखबरी क्या है। मेरी तरफ से यीशु मसीह में सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। और इसमें खुशखबरी जो है ये ऑल वर्ल्ड के लिए, जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई है तो ऑल वर्ल्ड के लिए खुशखबरी का पैगाम ये फरिश्तों ने दिया है बनी नौ इंसान को। और खुशखबरी ताकि दुनिया के लिए निजात का बंदोबस्त हुआ बनी नौ इंसान के लिए।
اور خوشخبری یہ کہ کوئی کسی کے لیے جان نہیں دیتا, صرف واحد یسوع مسیح ہے کہ جو تمام دنیا کے بشر کے لیے نجات کے لیے جان دی ہے, اور وہ عبدالآباد ہے. آمین. آمین آمین آمین. جی ہمارے ساتھ آمین. سسٹر نصرت ہے, میں چاہوں گی کہ وہ بھی خوشخبری کی جو ہے وہ تعریف بیان کریں. اچھا, خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں نے ابھی بیٹی کو ڈراپ کیا تو میں ادھر ہوں, تو ابھی میں پراپر جگہ پہ نہیں بیٹھی, لیکن خوشخبری سب نے بہت اچھا بتایا کہ خوشخبری کیا ہے. The good news, the gospel. Yeshua is the good news. He is the gospel. He is the savior. What we have to share with the people, that Jesus is the Messiah. He is the anointed one. That is the good news. Good news کیا ہے کہ یسوع ہی مسیحا ہے. آج بہت ساری قومیں اپنے مسیحا کا انتظار کر رہی ہیں, تو اب ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم نے لوگوں کو کیا دینا ہے؟ مسیح کو دینا ہے, یسوع کو دینا ہے, کہ جو نجات ہے, جو گڈ گاسپل ہے. He is the Bible. He is the gospel. He is the history maker. He is yesterday, today, and the future. He is the gospel. He is the good news. This is what we have to preach. جی ہاللویا, خدا ان کی تعریف ہو. میں آپ سب کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. سب نے بہت اچھا بیان کیا ہے اپنے اپنے نقطہ نظر سے خوشخبری کی. اچھا, سوری میرا کٹ گیا تھا, پورا ہوا ہے کہ نہیں کہ بیچ میں وہ نا ہو رہا ہے سگنل ایشو نا. اب میں گاڑی میں آ گئی, اب میرے پاس ہے سگنل. چلیں تو ٹھیک ہے, میرا کمپلیٹ ہو گیا. ہاں جی, ہاں جی, صرف وہی ہمیں چاہیے تھا کہ کیا آپ کے نزدیک اس کی تعریف کیا ہے. تو اب ہم آگے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. تو یہ ہے کہ خوشخبری کیا ہے. سب نے جو ہے اس کو اپنے اپنے انداز میں بیان کیا ہے. سب ٹھیک ہیں, سب نے صحیح کہا. خدا یسوع مسیح ہیں, ہمارے لیے خوشی کی خبر ہے. خدا یسوع مسیح جو ہے ہم ان کی پریچنگ کرتے ہیں. لیکن آج ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ جو ایک اتھینٹک جو گاسپل ہے, جو اتھینٹک جو ٹرو بائبل کے مطابق ہے, وہ کیا ہے. کیونکہ آپ سب نے بیان تو سب نے بڑا اچھا کیا ہے, لیکن سب کے یعنی بہت کم لوگوں کے پاس اس بات کا مکاشفہ ہے کہ خوشخبری کیا ہے. بے شک ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ ہم اتنے سالوں سے جو ہے وہ پریچنگ کر رہے ہیں, ہم اتنے سالوں سے جو ہے وہ منادی کر رہے ہیں, ہم اتنے سالوں سے کرسچن ہیں, ہم دوسروں کو بتاتے ہیں, دوسروں کو سکھاتے ہیں. آج وقت ہے کہ ہم اپنی جو پریچنگ ہے اس کی جو سمت ہے ہم اس کو درست کریں کہ ہم نے چلنا کس طرف سے ہے, ہم نے لوگوں کو پریچ کیا کرنا ہے. جب ہمیں خود ہی واضح نہیں ہے تو ہم لوگوں کو کیا پریچ کریں گے, ہم کیا لوگوں کو سکھائیں گے. یہ ہمیں جو ہے آج دیکھنا ہے کہ بائبل کے مطابق جو ہے وہ خوشخبری کیا ہے, یا جو ابتدائی کلیسیا تھی یا جو پولس رسول ہے وہ کس بات کی جو ہے وہ منادی کرتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غلطیوں کے خط اس کے پہلا باب اس کی 6 سے 9 آیت میں, اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو آپ اس کو پڑھنے میں رہنمائی کریں. غلطیوں اس کا پہلا باب اس کی 6 سے 9 آیت میں. اس میں یوں لکھا ہے, غلطیوں اس کے جو ہے پہلا باب اس کی 6 سے 9 آیت میں لکھا ہوا ہے. پولس رسول یہ بیان کرتا ہے. ہیلو جی آپ کون پڑھنا چاہتا ہے, پڑھیں. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے. جی بولے اب آپ. میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے. مگر وہ دوسری نہیں, البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گمراہ دیتے اور مسیح کی خوشخبری کو بگاڑنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو ملعون ہو. جیسا ہم بیشتر کہہ چکے ویسا ہی اب میں
फिर कहता हूं कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो तू मलौन हो। तो कलाम मलाउन हो। मुकद्दस का पढ़ना। जी, पौलुस रसूल कहता है कि वो खुशखबरी जो हमने तुम्हें सुनाई है, अगर कोई और खुशखबरी कोई तुम्हें सुनाता है या कोई और किसी बात की प्रीचिंग करता है तो वो मलाउन हो। मतलब पौलुस रसूल जो है वो जिस खुशखबरी की बात कर रहा है, आज हमें उस पे गौर करनी है कि वो किस खुशखबरी की बात करता है। इसी तरह हम देखते हैं कि दूसरा ग्रंथियों उसके 11 बाब में उसके 3 से 4 आयत में जो है पौलुस रसूल क्या कहता है, उसमें वो ये बात करता है, कहता है कि लेकिन मैं डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। यहाँ पर पौलुस रसूल ये बात करता है कि वो आने वाले वक्त और हालात को जानता था कि जब बहुत सारे लोग, जब बहुत सारे ग्रोह या बहुत सारी कौमें, उम्मतें जो हैं जब खुदावंद यीशु मसीह में आना शुरू हो गई, बहुत सारी बातें, बहुत सारे तफरके होना शुरू हो गए, तो वो ये बात करता है कि मैं जो हूँ, मैं इस बात से खौफजदा हूँ या मैं डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्यालात भी उस खलूस और पाक दामनी से हट जाएं जो मसीह के साथ होनी चाहिए। तो हम सब ये जानते हैं कि पौलुस रसूल और जो इब्तदाई कलीसिया थी, उन्होंने एक वाज़े जो है वो प्रीचिंग स्टार्ट की थी, वाज़े खुशखबरी वो देते थे, लोगों को जाके सुनाते थे, लोगों को जाके बताते थे कि मतलब जो है हमें किस बात पर ईमान रखना है, हमें किस बात पर जो है वो ईमान लेकर आना है कि खुदा में यीशु मसीह जो है वो कौन है या यीशु कौन है। हम सब ये जानते हैं कि बनी इसराइल कौम जो है वो अपने मसीहा का इंतजार कर रही थी, खुदा यीशु मसीह का इंतजार कर रही थी, वो उस मसीहा का इंतजार कर रही थी जिसके बारे में जो है मूसा ने पेशन गोई की, जिसके बारे में बहुत से नबियों ने पेशन गोई की, और इस बात को जानते थे कि मसीहा जब आएगा हमारी निजात के लिए काम करेगा, हमें जो है वो दुखों से, तकलीफों से हमें रहाई देगा, वो हमें जो है हमारा बादशाह होगा, वो हमें रहाई देगा। मतलब वो अपने उस मसीहा का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब मसीहा आया तो मसीहा को वो पहचान ना पाए, यानी कि उन्होंने पहचाना ही नहीं कि यही जो यीशु है, इसी को जो है वो मसा किया गया है कि हमारे सारे मसाइल का हल जो है उनका हल तलाश करें और हमारे लिए जो है वो अपनी जान कुर्बान करें। मेरे अजीजों, आज हमें ये देखना है कि हम प्रीचिंग किस बात की कर रहे हैं। हमने देखा है कि हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी डिनोमिनेशंस हैं, कोई जो है वो शिफा को जो है वो बेच रहा है, कोई जो है प्रॉस्पेरिटी को बेच रहा है, कोई जो है मतलब पानी और तेल को बेच रहा है, कोई और बहुत सारी चीजों को बेच रहा है, कोई झूठी नबूवतों को बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब हर शख्स ने जो है एक अपना अपना जो है वो अलग अलग अंदाज बनाया हुआ है, और लोगों को जो है, या कई लोग जो हैं वो सिर्फ मौजज़ात पर बात करते हैं। यानी जो सही जो प्रीचिंग है, जो सही प्रीचिंग है, जो कलाम की जो है, जो सही, पहली तो बात यह है कि जो ईमान की सही सिमत है, अभी तक कोई भी कलीसिया जो है वो उसको दुरुस्त ही नहीं कर पाई, उसको वो सिखा ही नहीं पाई अपने लोगों को। हम बहुत बड़े बड़े प्रेयर फेस्टिवल्स देखते हैं, हम बड़े बड़े सरमन्स देखते हैं कि, और बड़े हम खुश होते हैं कि हमने इतने क्रूसेड्स कराए, हमारे फलां पास्टर्स, हमारे फलां मतलब उनकी इतनी है कि खुदा उनके साथ है और उनके वसीले से बड़े बड़े काम होते हैं। ठीक है, जब हम खुदावंद का नाम इस्तेमाल करते हैं, खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है, और खुदा अपने नाम की गैरत के लिए जो है वो मौजज़ात करता है। ठीक है, लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं सुना कि किसी ने भी सही जो है तालीम अपने लोगों को दी हो, अपनी कलीसिया को सही तालीम दी हो, अपने लोगों को सही जगाया हो। मैं उसकी बात करती हूँ, मैं उसके वो जो बिली ग्राहम है, मैं उसके देखती हूँ कि वो बिली ग्राहम जो है वो हमेशा जब भी हम उसका कोई सरमन या सुनते थे, वो कभी भी सिवाय मतलब जो है इस बात के प्रीचिंग के वो कोई बात नहीं करता था। वो लोगों को सिर्फ रूहों को बचाने की बात करता था कि खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाओ, खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाओ, बस वो यही बात करता था। मतलब इतना, यानी कि हमने एक अपना जो है वो स्टेटस बना लिया है, लेकिन बाइबल को या उस खुशखबरी को हमने बहुत पीछे कर दिया है जिसकी हमें प्रीचिंग करनी है। शायद हम एक माशरती स्टेटस के पीछे हैं, या हम मतलब अपने आप को वो जाहिर करने की। कभी कभी हमारे जहन में ये सवाल आता है कि अगर इनके साथ खुदा ना होता,
या ये खुदा के बहुत प्यारे नबी या पैगंबर या पास्टर्स या खादिम ना होते तो खुदा इनके वसीले से खुदा मौजज़ात ना करता। तो मेरे अजीजों, आज ये बात याद रखें कि खुदा अपने नाम की गैरत रखता है। खुदा का नाम अब जहां जो भी इस्तेमाल करेगा, जो भी उसको कुदरत के लिए इस्तेमाल करेगा, खुदावंद अपना काम करेगा, क्योंकि वो अपने नाम को इज्जत और जलाल देता है और उसके नाम को ही इज्जत और जलाल मिले। लेकिन उस शख्स की कोई लियाकत नहीं है, उस शख्स की कोई मतलब वो नहीं है कि वो अपने आप को कहे कि मैं बहुत वो हूँ। खुदा अपना नाम जो है उसके लिए खुदावंद सारे काम करता है, खुदावंद मौजज़ात करता है। आज वक्त ये है कि आपकी हजारों की या लाखों की जो आपने क्रूसेड जो करा लिए हैं, उसमें कितने लोग जो हैं इस बात को जान पाए हैं कि खुदा यीशु मसीह ही नजात दहिंदा है, खुदा यीशु मसीह ही मसीहा है, खुदा यीशु मसीह ही वो है जिसने मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान की। वो कितने लोग हैं जिनकी जिंदगियां तब्दील हुई हैं, कितने लोग हैं जो इस बात को जान पाए हैं और जानकर जो हैं जिन्होंने अपने घरानों को अपने अपने आप को तब्दील किया है। ऐसे कितने लोग हैं, जैसे लोग आते हैं वैसे ही लोग चले जाते हैं। वो सिर्फ जिस्मानी शिफा के लिए आते हैं, रूहानी शिफा के लिए नहीं आते, क्योंकि हम जिस्मानी शिफा को बेचते हैं, हम शिफाओं को बेच रहे हैं। हम हमारे जितने भी कन्वेंशंस होती हैं, हम सुनते हैं कि आप आओ और अपने मोर्जात को हासिल करो, आप आओ और शिफा पाओ, बीमारियों से शिफा पाओ, फलां चीज से शिफा पाओ, फलां से शिफा। मतलब हम जो हैं रूहानी शिफा की बात नहीं करते, हम सिर्फ जिस्मानी शिफा को बेच रहे हैं और बेचते हैं। ये हमने देखा है और हमें बड़ा अफसोस होता है। तो आइए हम पौलुस रसूल का देखते हैं कि जो खुशखबरी है उसकी जो ऑथेंटिक जो तारीफ है, जो पौलुस रसूल ने जो की, जो पौलुस रसूल करता है वो क्या है। और पौलुस रसूल ने पहले ही मैंने बता दिया कि पौलुस रसूल कहता है कि अगर इस खुशखबरी के अलावा कोई और तुम्हें खुशखबरी सुनाए तो वो भी मलाउन हो, और अगर हम उस खुशखबरी को कबूल करते हैं तो फिर हम भी मलाउन होते हैं। हमें जो है ये बात याद रखनी चाहिए कि हमें जो खुदा का कलाम जो हमें सिखाता है उसको हमें गौर से पढ़ना चाहिए। सब जो है, हम सब हमेशा जब भी खुदावंद यीशु मसीह का हम नाम लेते हैं तो हम कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह, हम पूरा नाम लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते कि हम ये समझते ही नहीं कि हम यीशु के साथ मसीह क्यों लगाते हैं, हम यीशु को मसीह क्यों कहते हैं, क्यों हम जो है मसीह कहते हैं। हम सिर्फ एक इसको आम नॉर्मल नाम लेते हैं कि ये खुदा यीशु मसीह का नाम है बस, लेकिन हम इसकी गहराई को नहीं जानते कि हम यीशु को मसीह क्यों कहते हैं। तो आइए हम इसमें बात करते हैं, हम इसमें आगे बढ़ते हैं। और वो कहता है, पौलुस रसूल कहता है, और जो इब्तदाई कलीसिया थी उन्होंने जो है, हम अमाल की किताब में से देखेंगे कि जो पौलुस रसूल और बाकी जो शागिर्द थे वो क्या खुशखबरी जो है वो सुनाते हैं। तो उसके लिए हम रोमियो उसका पहला बाब उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे, पहला बाब उसकी पहली आयत से, रोमियो के नाम खत हालेलुया। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। हालेलुया जी। जिसकी आमीन, पढ़े आगे। हालेलुया। जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, जिनमें से तुम भी यीशु मसीह के होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया आमीन आमीन।
यहाँ पर पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत में बयान करता है, वो कहता है कि पौलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया। अब किस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है? किस खुशखबरी की पौलुस रसूल जो है वो बात करता है? पौलुस रसूल ये बात करता है कि मुझे जो है मखसूस किया गया है, मुझे मसा किया गया है, मुझे जो है वो रसूल बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों के मार्फत किताब मुकद्दस में, जिसका जिक्र खुदा बाप ने अपने पुराने जो पुराने सहाइफ हैं उनमें अपने अनबिया के जरिए से जो है किताब मुकद्दस में जो है बयान किया है। क्या बयान किया? और अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जिस्म के एतबार से तो वो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ। हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से आए, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से खुदा के कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा। और हम सब ये जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह की जो पैदाइश है वो बड़े ही जलाली तरीके से हुई। खुदा की कुदरत के साथ जो है वो माँ के बतन में आता है और मुर्दों में से जब जिंदा होता है तो वो भी खुदा की कुदरत से जिंदा होता है, जिसके सबब से वो खुदा का बेटा ठहरता है और जिसकी मार्फत हमको फजल और रसालत मिली ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबे हों। अब हम ये देखते हैं कि वो खुशखबरी जिसकी वो बात कर रहा है, आगे इसकी हम जो है वो तफसील और आगे हम देखते हैं। तो पौलुस रसूल अमाल की किताब उसके 17 बाब की 3 से 2 आयत में क्या करता है कि अब जो वो खुदा का बंदा जो मखसूस हुआ है, जिसको खिदमत मिली है, तो वो अब क्या खिदमत कर रहा है। आइए हम अमाल की किताब में देखते हैं उसके 17 बाब में 17 बाब और उसके 2 से 3 आयत में हम ये देखेंगे। उसमें यूं लिखा है, और पौलुस अपने दस्तूर के माफिक उनके पास गया और 3 सबतों को किताब मुकद्दस से उनके साथ बहस की और उसके मानी खोल खोल कर दलीलें पेश करता था कि मसीह को दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। अब हम ये देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है वो जब मनादी कर रहा है तो वो लोगों को क्या कह के मनादी कर रहा है, वो लोगों को क्या कह रहा है। आज हमें अपनी जो मुनादी है, जो अपनी प्रीचिंग है, उसको हमने किस तरह से प्रीच करना है, उसकी सिमत को हमने दुरुस्त करना है, जिसमें पौलुस रसूल ये बात करता है कि वो किताब मुकद्दस से दलीलें देता था, वो लोगों को सिखाता था कि किस किस तरह से जो यहूदियों के इबादत खाना में कि सहाइफ अनबिया में जो है किस किस तरह से खुदा यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई की गई है और किस तरह से वो खुदा यीशु मसीह में पूरी हुई हैं। तो वो जो है उनको क्या कहता है कि मसीह का दुख उठाना और मुर्दों में से जी उठना जरूर था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें खबर देता हूँ मसीह है। ये है बात काबिल गौर कि वो ये बात करता है कि यीशु ही मसीह है। मसीह का मतलब हमने देखा कि मसाया, कि जिसको मसीह किया गया है, किस लिए कि वो अपनी जान कुर्बान करे, किस लिए कि वो खुदा का बेटा जमीन पर आए और अपनी जान कुर्बान करके बाप से हमारा मिलाप कराए। वो किस लिए कि वो काहिन की तरह अपनी कुर्बानी पेश करे, वो बर्रे और बछड़ों का खून जो है वो कुर्बान गाह से लेकर पाक तरीन मकाम में दाखिल ना हो, बल्कि वो अपना ही खून लेकर जो है पाक तरीन मकाम में दाखिल होता है और प्रॉफिट की सूरत में वो हमें खुदा से हमारा मिलाप कराता है, और जो है वो बेटे की सूरत में जो फरमाबरदारी करता है और दुख उठाता है और मुर्दों में से जिंदा होता है। यानी खुदा यीशु मसीह को ही मसा किया गया। खुदा यीशु मसीह ही जो है वो बादशाह है, खुदा यीशु मसीह ही वो प्रॉफिट है, खुदा यीशु मसीह ही वो काहिन है, हाई प्रीस्ट है, जो कुर्बानी चढ़ाता है, जो अपनी ही जान कुर्बान करता है, और वो बादशाह जो हमें दुखों से छुड़ाता है, वो बादशाह जो जमीन पर खुदा की बादशाही को लेकर आता है, और वो खुद बादशाह है। हम इस पर भी मान रखते हैं कि वो जमीन पर बादशाह की सूरत में आने वाला है। मतलब यहाँ पर ये देखें कि वो पौलुस रसूल क्या बात करता है कि यीशु ही मसीह है। हमें लोगों को ये प्रीच करना है कि हम अक्सर शायरी में लोगों में कि लोग जो है दुनिया को एक मसीहा का इंतजार है,
اب مجھے غالب کا وہ شعر یاد نہیں آ رہا جس میں وہ کہتا ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے درد کی دعا کرے کوئی، جس میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ مطلب ابن مریم کے کاش کوئی مریم کا بیٹا اس جیسا میرے لیے آئے اور میرے دکھوں اور میرے درد کی جو ہے وہ مجھے تکلیف سے نجات دے۔ یعنی دنیا بھی جو ہے وہ اس مسیحا کا انتظار کر رہی ہے جو دکھوں میں جکڑی ہے، جو درد ذہ میں جکڑی ہوئی ہے، جو پریشانیوں میں تکلیفوں میں ہے، وہ بھی اسی مسیحا کا انتظار کر رہی ہے کہ شاید کوئی آئے اور ہمیں اسے چھڑائے۔ ہماری جو پریچنگ ہے وہ یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح ہے، خوشخبری یہ ہے لوگوں کو سکھانی، سنانی اور لوگوں کو اس کی پریچنگ کرنا کہ خدا یسوع مسیح ہے اور اسی ہی کو مسح کیا گیا تاکہ ہمارے سارے دکھوں کا جو حل ہے وہ صرف خدا یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اسی طرح سے ہم اعمال کی کتاب 18 باب میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہم یہاں پر یہی دیکھتے ہیں 18 باب اور اس کی 5 آیت میں پولس رسول کہتا ہے، اور جب سیلاس اور تیموتھیوس مقدونیہ سے آئے تو پولس کلام سنانے کے جوش سے مجبور ہو کر یہودیوں کے آگے گواہی دے رہا تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے، کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ یعنی ہمیں ایمان یہ رکھنا ہے کہ خدا یسوع مسیح ہی وہ مسیح ہے جو ہماری خاطر زمین پر آیا، جس کو ہماری خاطر مسح کیا گیا۔ اسی طرح سے ہم اعمال اس کے 2 باب اس کی 36 آیت میں ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس بات سے اس واقعے سے سب واقف ہیں کہ جب عید پینتیکوست کے دن جو ہے تمام رسولوں پر جو ہے روح القدس نازل ہوتا ہے، تو جو پطرس رسول جو ایک بڑا ہی خوف زدہ اور بزدل سا ہم نے دیکھا ہے، لیکن جو ہی خدا کا روح اس کے اندر آتا ہے تو وہ جو ہے وہ پریچنگ سٹارٹ کر دیتا ہے، وہ وہاں پر جو ہے یہودیوں سے بات کرنا شروع کر دیتا ہے اور لوگوں سے جو ہے ہیکل میں کھڑے ہو کر بڑی ہی دلیری اور جرات کے ساتھ جو ہے وہ گواہی دینا شروع ہو جاتا ہے کہ خدا یسوع ہی مسیح ہے۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کے 36 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 36 آیت میں یہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ پس اسرائیل کا سارا گھرانہ یقین جان لے کہ خدا نے اسی یسوع کو جسے تم نے مصلوب کیا خداوند بھی کیا اور مسیح بھی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ہمارا خداوند بھی ہے اور مسیح بھی کیا، یعنی اسی کے وسیلے سے خدا باپ نے وہ سارے کام کیے جن کو پورا کرنا ضرور تھا اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس طرح آگے ہم بڑھتے ہیں تو اعمال کی کتاب اس کے 5 باب اس کی 42 آیت میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، 5 باب اس کی 42 آیت میں یوں لکھا ہے، اس میں لکھا ہے، اور وہ ہیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہ آئے، کہ جیسس از دا کرائسٹ، صرف خدا یسوع ہی وہ مسیحا ہے جو جس پر ایمان لا کر جو ہے ہم جو ہے اپنی پریشانیوں سے اور اپنی نجات کو حاصل کر سکتے ہیں، اپنے دکھوں سے ہم چھوٹ سکتے ہیں کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ جو ہماری پریچنگ ہے ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہے، ہمیں اس بات کا ایمان رکھنا ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، کہ یسوع ہی مسیحا ہے جسے مسح کیا گیا، جسے ہماری خاطر بھیجا گیا تاکہ وہ ہمارا خداوند بھی ہو اور وہ ہمارا مسیحا بھی ہو۔ اسی طرح سے ہم اعمال کی کتاب اسی کی 9 باب اس کی 22 آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ابتدائی کلیسیا تھی وہ ہمیشہ جب بھی مطلب پریچنگ کرتی تھی یا خوشخبری سناتی تھی یا لوگوں کو جا کے منادی کرتے تھے خدا یسوع مسیح کے بارے میں، تو وہ کس طرح سے منادی کرتے تھے؟ اس میں 22 آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ لیکن ساؤل کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی اور وہ اس بات کو ثابت کر کے مسیح یہی ہے دمشق کے رہنے والے یہودیوں کو حیرت دلاتا رہا۔ یعنی کہ وہ یہ بات ثابت کرتا تھا کہ مسیح یہی ہے، ہمیں بھی یہی ثابت کرنا ہے، ہمیں بھی اسی بات پر زور دینا ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے، جیسس از دا کرائسٹ، کہ خدا میں یسوع ہی مسیحا ہے، خدا میں یسوع مسیح ہی وہ مسیحا ہے جس کا دنیا انتظار کرتی ہے، جس کی یہودی قوم انتظار کر رہی تھی۔ جس طرح سے بے شک جو دوسرے لوگ تھے یا دوسری قومیں تھی وہ خدا میں یسوع مسیح کے بارے میں یا خدا کے بارے میں نہیں جانتی تھی، لیکن وہ کسی ایسے مسیحا کا ضرور انتظار کر رہی تھی جو انہیں دکھوں سے چھڑا سکے۔ اور آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اعمال 18 باب اس کی 24 سے 28 آیت میں لکھا ہے، 18 باب میں ہم دیکھتے ہیں، پھر ہم 18 باب کی طرف جاتے ہیں جس میں لکھا ہے اس کی 23 اور 24 آیت میں یوں لکھا ہے، 24 سے 28 آیت ہم پڑھیں گے۔
पौलुस नामक एक यहूदी जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, इफिसुस में आया। उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी और मन लगाकर यीशु के विषय ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रियकिला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। हालेलुया। आगे पढ़ना। हालेलुया। जी जी 28 पौलुस आयत। ने कि पार उतरकर अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसे डांडस देकर चेलों को लिखा कि वह उससे अच्छी तरह मिले, और उसने वहां पहुंचकर उन लोगों की बड़ी सहायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था, क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरंतर करता रहा। आमीन। आमीन। यहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि पौलुस रसूल जो है और उसके जो साथी हैं, और जो अपुल्लोस है वो एक यहूदी है, वो सिकंदरिया की उसकी पैदाइश है, वो हालांकि बहुत अच्छे तरीके से कलाम को जानता है और बड़े ही जोश और रूहानी जोश से भरा हुआ है, और यीशु की बाबत वो सही तालीम देता था, लेकिन वो यूहन्ना के बपतिस्मे से, यानी उसने खुदा यीशु मसीह के नाम से अभी बपतिस्मा नहीं लिया था। तो हम सब ये देखते हैं कि किस तरह से जो है वो यहूदियों को इस बात के लिए कायल करते हैं कि यीशु ही मसीहा है। वो बार बार किताब मुकद्दस में से हवाला जात निकाल कर जो है वो इस बात के लिए जो है वो करते हैं कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही वो अनॉइंटेड वन है जो हमारे लिए आसमान से आया कि वो सारे काम कर सके जो एक इंसान वो नहीं कर सकता। तो आइए हम देखते हैं, आखिरी हवाला है हमारा, उसके बाद हम पहला यूहन्ना का आम खत है, यूहन्ना के आम खत में उसके पहले बाब में उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है, 5वें बाब की पहली आयत में यूं लिखा हुआ है, जिसका ये ईमान है। जी बोले आप। जिसका ये ईमान है, जिसका ये विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है। अब ये है कि पौलुस रसूल यूहन्ना जो है वो क्या कहता है कि जो बगैर खुदा के रूह से या रूहुल कुद्स की मदद के बगैर हम ये नहीं कह सकते कि यीशु ही मसीह है। यहाँ पे वो कहता है कि जो ये ईमान रखता है कि यीशु ही मसीह है वो खुदा से पैदा हुआ है, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। और अगर हम खुदा बाप से मोहब्बत रखते हैं तो उसके बेटे से भी मोहब्बत रखेंगे, और अगर हम खुदा से मोहब्बत नहीं रखते तो फिर हम उसके बेटे को भी नहीं जानते, हम उसके बेटे को भी नहीं पहचानते। और कोई भी जो रूह है वो उस वक्त तक जो है यीशु मसीह को मसीहा नहीं मान सकती जब तक खुदा का रूह उसको ना सिखाए या जब तक उसको ऊपर से न दिया जाए। तो मेरे अजीजों, हमें जो है इस बात की जो है मुनादी करनी है। आज हम जितने भी हमारे मेरे सुनने वाले हैं, जो हमारे टीम के मेंबर्स हैं, हमें जो है अपनी जो मुनादी है, अपनी जो प्रीचिंग है, उसकी सिम्मत को हमें थोड़ा दुरुस्त करना है और हमें लोगों को बताना है। हमें सिर्फ लोगों को ये नहीं बताना कि हम अपने गुनाहों से तौबा कर लें, हम नजात पा लेंगे, हम ये कर लेंगे, खुदा यीशु मसीह जो है हमें जो है उसके ईमान की जो सही जो सिम्मत है हमें दूसरों को ये बतानी है कि यीशु ही मसीहा है। अब मसीहा का मतलब क्या है वो हम आगे देखेंगे कि मसीहा कौन है और क्यों यीशु को जो है मसीह का लफ्ज दिया गया, मसीह का लकब दिया गया। खुदावन जो यीशु है उसका जो नाम है वो यीशु है, लेकिन मसीह जो है खुदावन यीशु मसीह का लकब है जो उसे दिया गया है। तो हमें ये ईमान रखना है और हमें अपने ईमान की सिम्मत को दुरुस्त करना है। हम सब जो है, जो हमारी टीम है, हम सब जो है इस बात की प्रीचिंग करेंगे और इस बात की आप जो डीप स्टडी आप इस बात की करें और लोगों को ये सिखाएं, लोगों को ये बताएं कि यीशु जो है वो मसीहा है,
यीशु ही वो है जो हमारे सारे मुश्किलात और सारे मसाइल का हल हमारे खुदा यीशु के पास है। हम यूहन्ना की इंजील उसके जो 20 बाब उसकी 30 से 31 आयत में हम पढ़ते हैं, ये आखिरी हवाला है यूहन्ना की इंजील उसके 20 बाब उसकी 30 से 31 आयत में यूं लिखा है, उसमें लिखा है कि और यीशु ने और बहुत से मौजूद शागिर्दों के सामने दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाओ। ये है हमारी खुशखबरी, ये है ट्रू खुशखबरी, ये है खुशखबरी की वो तारीफ जो बाइबल मुकद्दस में दी गई है। अब जब कोई आपसे पूछे कि खुशखबरी क्या है, जिसकी आप मुनादी कर रहे हैं, जिसकी आप प्रीचिंग कर रहे हैं, जिसके आप खादिम बने हुए हैं, जिसके लिए आप जो हैं इतनी जद्दोजहद करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, वो किस लिए आप मेहनत कर रहे हैं? कि लोगों को ये सिखा सकें कि ताकि वो लोग ईमान लाएं कि यीशु ही खुदा का बेटा मसीह है और ईमान लाकर उसके नाम से जिंदगी पाएं। तो मेरे अजीजों, ये है ट्रू गॉस्पल, ये है वो बात। हम सब ठीक है कि पौलुस रसूल भी इस बात की कहता है कि खुदा में यीशु मसीह जो है वो मेरी खातिर मरा, मेरी खातिर दफन हुआ और मेरी खातिर मुर्दों में से जी उठा। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन ये हमारे ईमान की एक कड़ी है कि हमें इस बात पर भी ईमान रखना है कि खुदा में यीशु मसीह जो है उसने दुख उठाए, सलीब उठाई, मेरी खातिर वो जान कुर्बान की और मेरे खातिर जो है उसने अपना पाक लहू बहाया मेरे गुनाहों की खातिर। लेकिन जो मेन हमारा ईमान है, जो गॉस्पल है जिसकी हमें प्रीचिंग करनी है, वो ये है कि यीशु ही खुदा का बेटा और मसीह है, ताकि हम उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी पाएं। तो मेरे अजीजों, ये भेद बहुत गहरा है, इसको आप जितना डीप स्टडी करें उतना बेहतर है, ताकि हम लोगों को जो है वो सही सिमत की तरफ लेके जा सकें। हम लोगों को सिर्फ बपतिस्मा ही ना देते रह जाएं, हम सिर्फ लोगों को ये ना कहते रह जाएं कि आप ये कर लो, जबकि उनके अंदर डीप वो स्टडी जब तक वो उनके अंदर आएगी नहीं, जब तक वो उस ईमान को सही समझेंगे ही नहीं, उनकी जिंदगियां तब्दील नहीं होंगी। इसलिए खाली आप नंबरिंग मत करें या नंबरिंग मत बढ़ाएं, एक ही रूह बचा लें वो भी बड़ी है। वो एक रूह के वसीले भी बहुत सारी रूहें बच जाएंगी। जब तक उसके अंदर डीप स्टडी नहीं है, जब तक वो उस मुकाशफा को सही समझे नहीं है, जब तक उस बात को वो समझे नहीं है, आप उसको नहीं कर सकते। तो मेरे अजीजों, खुदावंद हम सबको इसकी डीप स्टडी दे और हमें सिखाए। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।